morning everyone. Myself Sunita Sinha. I will taking your science subject in online class. Today we are going to start first chapter. Chapter name is matter in our surrounding. First question arises in our mind. What is matter? Matter क्या होता है? वो सभी things जो space occupy करता है और जिसमें weight हो उसे matter कहते हैं. Everything in this universe is made up of material. We scientists have named matter, or in other word, we say that it is anything which occupies space and has mass is known as matter. For an example, stone, cloud, star, small drop of water, etc. Second question arises in our mind, how we classify the matter. Now, first point, early Indian philosopher classified in the form of 5 basic elements as air, earth, fire, sky and water, which is called पंच तत्व. इट मीन्स हमारे इंडियन फिलोसोफर ने मैटर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था जिसको हम पंच तत्व कहते हैं, हवा, मिट्टी, आग, आकाश और पानी. Second point, according to physical structure, we have 3 types of matter, solid, liquid and gas. But nowadays, we have 5 states of matter, solid, liquid, gas, plasma and BEC, Bose-Einstein condensate. Third point, according to chemical structure, we have 2 types of matter, pure substances and mixture. Pure substances again divide into 2 parts, elements or compound, and mixture also divided into 2 parts, homogeneous mixture or heterogeneous mixture. In this chapter, we have learned about state of matter on the basis of physical structure. Now, our next point is physical nature of matter. According to your syllabus, matter has 2 physical nature. Point A, matter is made up of particle. It means सभी matter particles के बने होते हैं. It is explained by an activity. इस एक्टिविटी के लिए हम 100 मिलीलीटर का एक बीकर लेंगे. उसमें 1 स्पून सॉल्ट मिक्स करेंगे. फिर उसे थोड़ी देर रहने देंगे. थोड़ी देर के बाद सॉल्ट कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा. इट मीन्स salt is completely dissolved in water. Here salt is break down in a small particle. In other words, you say salt is made up of particle. So not only salt, all things in the universe made up of particles. Now our second point. The particles of matter are very tiny. इट मीन्स पार्टिकल की साइज बहुत छोटी होती है जिसे हम नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं. इट इज ऑल्सो एक्सप्लेन बाय एन एक्टिविटी. इस एक्टिविटी के लिए हम 4 बीकर लेंगे. फर्स्ट बीकर में 100 मिलीलीटर वाटर डालेंगे. बाकी 3 बीकर्स में 90 मिलीलीटर वाटर लेंगे. फर्स्ट बीकर में 2-3 ड्रॉप्स ऑफ क्रिस्टल पोटासियम पर मैग्नेट डालेंगे. पोटासियम पर मैग्नेट वाटर में मिक्स होकर पिंक कलर में चेंज हो जाएगा. जस्ट सी इन द फिगर, द कलर ऑफ वाटर इन फर्स्ट फिगर इज डार्क पिंक. इसके बाद 10 मिलीलीटर वाटर फर्स्ट बीकर से लेकर सेकेंड बीकर में डालेंगे. सेकेंड बीकर से लेकर थर्ड बीकर में, थर्ड बीकर से लेकर fourth and so on. Just you observe the color of water. धीरे धीरे वाटर का कलर लाइट होता जाएगा. इट मीन्स लास्ट बीकर हैव द लाइटेस्ट पिंक कलर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट बीकर. इट मीन्स ऑल द पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज characteristic of particles of matter. How many characteristics of particles of matter? According to your syllabus, there are 3 characteristics of particle. First point, the particle of matter are continuously moving. For an example, अगर आप इंसेंस स्टिक यानी अगरबत्ती को एक कॉर्नर में जलाओ तो उसके पार्टिकल चारों डायरेक्शन में मूव करेंगे जिससे हमें उसकी स्मेल आती है. सो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग इन
all direction. Second point, the particles of matter have space between them. It means पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है. फर्स्ट एक्टिविटी में सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व हो गया था. इसका मतलब सॉल्ट स्मॉल पार्टिकल में ब्रेक डाउन होकर वाटर पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है उसमें सेटल डाउन हो गया. ये प्रूव करता है कि हर पार्टिकल के बीच में लिटिल बिट स्पेस होता है. Now third point, the particle of matter attract each other. It means सभी पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे कहे कि आप एक वाटर पार्टिकल को सेपरेट करके दिखाओ, हम ऐसा नहीं कर सकते. एक ड्रॉप वाटर में भी वाटर के बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं. Now our next topic is state of matter. We have three state of matter: solid, liquid and gases. Now we discuss the characteristic of state of matter one by one. First point, properties of solid. Solid have definite shape and fixed volume. The space between the particle is minimum. It means solid के particle के बीच में space बहुत कम यानी ना के बराबर होता है. थर्ड, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मैक्सिमम. इसमें सारे पार्टिकल एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग फोर्स से बाइंड अप किए हुए होते हैं. फोर्थ, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज इंटरमीडिएट. यहाँ पे पार्टिकल की मूवमेंट दिखती नहीं है, नेग्लिजिबल होगा. दे आर लेस कॉम्प्रेसेबल. इट मीन्स उसको आप प्रेस करके किसी अदर शेप में इजिली चेंज नहीं कर सकते हो. लास्ट पॉइंट, their rate of diffusion is very low. It means diffusion का मतलब होता है किसी भी चीज में easily mix होना. Solid particle easily किसी भी other things में mix नहीं होता है. Solid to solid mix almost ना के बराबर, but solid little bit diffusion liquid में दिखाता है. Okay, just see. You take a beaker. Just see. You take a beaker and you kept here solid particle. Solid particle is very closely packed like this way. Okay. Here no intercellular space between the particle. So second point, the space between the particle is minimum. Here all the particle are very closely packed. सभी particles बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, इसलिए इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काफी मैक्सिमम होता है. आप इसको इजिली कॉम्प्रेस भी नहीं कर सकते हो और इसकी शेप भी चेंज नहीं कर सकते हो. नाउ हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो सॉलिड के सारे प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता बट वो सॉलिड है. कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल. हियर 3 क्वेश्चंस आर गिवन. First question, what about a rubber band? Can it change its shapes on stretching? Is it a solid? रबर बैंड को स्ट्रेच कर सकते हैं. अगर स्ट्रेच होता है तो क्या वो सॉलिड में होगा? तो उसका आंसर जस्ट सी इन बिलो. और रबर बैंड चेंज शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन द शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड. If excessive force is applied, it breaks. रबर बैंड को जब हम स्ट्रेच करेंगे तो वो लिटिल बिट शेप चेंज करेगा, बट जैसे ही आप फोर्स को वहां से हटा दोगे वो वापस अपनी प्लेस पे आ जाएगा. रबर बैंड भी आपका सॉलिड का एग्जाम्पल है. सेकेंड पॉइंट, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? व्हेन कैप्ड इन ए डिफरेंट जार, दिस टेक द शेप ऑफ द जार. आर दे सॉलिड? हमने पढ़ा कि सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स शेप होता है. तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि शुगर एंड सॉल्ट जब हम जार में रखते हैं तो वो जार का शेप ले लेता है. देन हाउ वी कैन से दैट कि शुगर एंड सॉल्ट आर सॉलिड? जस्ट सी द आंसर, सेकंड डॉट. द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन ए प्लेट और इन ए जार. जब एक इंडिविजुअल शुगर या सॉल्ट को हैंड पे रखो या प्लेट में तो उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर फिक्स्ड होता है. ग्रुप ऑफ सॉल्ट को अगर जार में रखोगे तो पूरा ग्रुप ऑफ सॉल्ट का शेप आपको लगेगा चेंज हो रहा है, बट एक इंडिविजुअल क्रिस्टल फॉर्म ऑफ सॉल्ट और शुगर का शेप कभी भी चेंज नहीं होता है. सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड. नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट अबाउट ए स्पंज? इट इज ए सॉलिड yet we are able to compress it. Why?
स्पंज क्या सॉलिड है? क्योंकि हमने पढ़ा कि सॉलिड को हम कॉम्प्रेस यानी प्रेस्ड करके उसका शेप चेंज नहीं कर सकते, बट जब हम स्पंज को प्रेस करते हैं, कॉम्प्रेस करते हैं, तो उसका शेप लिटिल बिट चेंज हो जाता है। तो क्या ये सॉलिड है? Now, just see the answer number third. A sponge has minute holes in which air is trapped. When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. स्पेस में बहुत छोटे छोटे माइन्यूट होल होते हैं जिसमें एयर फिलअप होता है। जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो सारे एयर बाहर आ जाते हैं, जिसके कारण हमें लगता है कि स्पंज एक्सप्रेस्ड हुआ है। बट जैसे ही आप अपना हैंड या प्रेशर हटाओगे, स्पंज अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। सो वी कैन से दैट स्पंज इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हुए हैं। इन सभी एग्जाम्पल में कुछ पर्टिकुलर कंडीशन है जिसके कारण सॉलिड होने के बाद भी कुछ प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। Liquid have no definite shape but have the fixed volume. Liquid take the shape of the container. Liquid का shape fixed नहीं होता है but volume fixed होता है। Second point, the space between the particle is intermediate. Intermediate means not more, not less. ना ज़्यादा ना कम। तो आपके liquid particle के बीच में space solid के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा होता है but gas के कंपेयर में कम होता है। Third point, the force of attraction between the particle is intermediate. Fourth, the movement of particle is intermediate, यानी solid के कंपेयर में इसके particle little bit move करेंगे। Next point, they are less compressible. ये compress होता है but गैस के कंपेयर में थोड़ा कम है और solid के कंपेयर में ज़्यादा। Next point, their rate of diffusion is more than solid. Now for an example, suppose you have a vessel. Here you put out any liquid matter. Just see, the particle of liquid is little bit far to each other. Solid के कंपेयर में लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसलिए इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी इंटरमीडिएट, थोड़ा स्ट्रॉन्ग थोड़ा वीक होता है। थोड़े स्पेस होने के कारण इसके पार्टिकल मूवमेंट शो करते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा होता है। इट मीन्स ये किसी के साथ मिक्स हो सकता है। इसका अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा वीक होने के कारण इसको हम लिटिल बिट कंप्रेस करके शेप चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसका हम बोलते हैं कि फिक्स शेप नहीं होता है। इसको जिस कंटेनर में आप डालोगे लिक्विड का शेप उस कंटेनर के हिसाब से चेंज हो जाएगा। नाउ थर्ड, properties of gases. First point, gases have no definite shape nor fixed volume. Gases occupy the whole space of the container. Gases का ना तो fixed shape होता है और ना ही fixed volume. ये easily चारों direction में move कर सकता है। Second, the space between the particle is maximum. दो पार्टिकल के बीच का स्पेस सबसे मैक्सिमम होता है, सबसे कम सॉलिड में, लिटिल बिट मोर देन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैस पार्टिकल्स। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मिनिमम। इसमें पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होता है। फोर्थ पॉइंट, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम। इसके पार्टिकल की मूवमेंट कंटिन्यूसली किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। दे आर मोस्ट कंप्रेसेबल। इट मीन्स आप इसको कंप्रेस करके प्रेस करके किसी भी शेप में साइज में चेंज कर सकते हो। देयर रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। इसका डिफ्यूजन प्रोसेस बाकी इट मीन्स सॉलिड और लिक्विड के कंपेयर में सबसे ज्यादा होता है। सपोज यू हैव द कंटेनर एंड यू फिल द गैसेस मॉलिक्यूल्स। हियर जस्ट सी द पार्टिकल ऑफ गैसेस आर वेरी फार। ठीक है, यहाँ सारे पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर है, इसलिए इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मिनिमम होता है। पार्टिकल के बीच में स्पेस होने के कारण आप इसको इजीली कंप्रेस कर सकते हो। इसका डिफ्यूजन प्रोसेस भी सॉलिड एंड लिक्विड से ज़्यादा होता है।
We have observed that gases are highly compressible as compared to solid and liquid. अभी हमने पढ़ा कि गैसेस में compressible property solid और liquid के कंपेयर में सबसे ज्यादा होता है. For an example, LPG, full form liquefied petroleum gas cylinder that we get in our home for cooking, और oxygen supplied to hospital in cylinder is compressed gas. जो आप एलपीजी या ऑक्सीजन सिलेंडर देखते हो वो सिलेंडर फॉर्म में है, उसके अंदर में आपका गैस फिलअप है, बट नॉट ओनली से गैस, इट इज ए कॉम्प्रेस्ड गैस. इट मीन्स अंडर वेरी हाई प्रेशर गैस इज फिलअप इन cylinder. Compressed natural gas, it means CNG, is used as a fuel these days in vehicles. Due to its high compressibility, large volume of a gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. Compressed property maximum होने के कारण huge amount of gas को हम एक small cylinder में fill up कर सकते हैं और एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट भी इजिली कर सकते हैं. इन द gaseous state, the particle move about randomly at high speed. इसमें पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, इसलिए सारे पार्टिकल्स रेंडमली मूव करते हैं. रेंडमली मीन्स हियर एंड देयर, नॉट ए पर्टिकुलर direction. Due to this random movement, the particle hit each other and also the wall of container. Random movement के कारण सभी पार्टिकल एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं, यहाँ तक कि जिस कंटेनर में वो फिलअप है उसके वॉल से भी स्ट्राइक करते हैं. The pressure exerted by the gas is because of this force exerted by the gas particle per unit area on the wall of the container is maximum. अगर एक कंटेनर में सॉलिड है, एक कंटेनर में लिक्विड और एक कंटेनर में गैस, तो सबसे ज्यादा वॉल पे पर यूनिट एरिया किसका फोर्स एक्सर्ट होगा? गैस का. व्हाई? क्योंकि गैस के पार्टिकल रेंडमली मूव करते हैं एट ए हाई स्पीड. आवर नेक्स्ट टॉपिक, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर. वी नो दैट वी हैव 3 स्टेट ऑफ मैटर and each state have unique property. हमारे पास 3 state of matter है, solid, liquid and gas, और हर state की अपनी एक unique property होती है. But we change the state of matter. It can be changed by changing temperature and pressure. It means हम temperature और pressure से किसी भी state of matter को another state of matter में चेंज कर सकते हैं. इट मीन सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को वापस सॉलिड में चेंज कर सकते हैं. जस्ट सी इन diagram. When heat is increased, solid convert into liquid and liquid convert into gaseous state. When heat is decreased, then gaseous state convert in return back to liquid and liquid come back to in solid form. So we can say that the state of matter can be changed. For an example, when ice is heated, it convert into water, that is liquid. ओके जब आइस को हम हीट देते हैं तो आइस पहले सॉलिड में था, हीट सप्लाई करने के बाद वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, इट मीन्स लिक्विड. इफ वी कंटिन्यू हीट द वाटर, इट कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर, दैट इज गैसियस स्टेट. बट इन आवर माइंड क्वेश्चन अराइजेस, हाउ इट इज हैपन, ये होता कैसे है? In science language, when we increasing the temperature of solid, the kinetic energy of particles increase. Due to this, particle of solid start vibrating with greater speed. After some time, particles leave their fixed position and start moving freely. A stage is reached when solid is melt and convert to a liquid. It means जब हम टेम्परेचर सॉलिड को सप्लाई करते हैं तो पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से सॉलिड पार्टिकल्स में वाइब्रेशन आता है. वाइब्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होता है जिससे पार्टिकल की स्पीड लिटिल बिट इंक्रीज होती है. सम टाइम के बाद सभी पार्टिकल अपनी अपनी प्लेस को छोड़ देते हैं. एक ऐसा स्टेज होता है जब सभी पार्टिकल फ्रीली मूव करने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि सॉइल मेल्ट होना स्टार्ट हुआ. एंड आफ्टर मेल्टिंग सॉइल सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड. ओके, नाउ व्हेन मैटर चेंज देयर स्टेट, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स आर यूज्ड. जब आपका स्टेट एक से दूसरे में चेंज होता है तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. ओके चलिए डिस्कस करते हैं. फर्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट. द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट. एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता हो, तो उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं. जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री
सी है. ओके, और सेकेंड फॉर्म में बोल सकते हैं 273 केल्विन. सेकेंड पॉइंट, latent heat of fusion. The amount of heat energy required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is called latent heat of fusion. Here latent means hidden. ओके, लेटेंट एक न्यू वर्ड है जो जिसका मतलब हिडन होता है. सपोज वी गिव हीट एनर्जी टू आइस. ओके, हमने आइस को हीट एनर्जी दिया. अब आपको आइस का टेम्परेचर मेजर करना है बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर हीटिंग. बिफोर हीटिंग व्हेन यू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन आइस इट इज 0 डिग्री सी बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इट मीन्स आइस टेम्परेचर इज 0 डिग्री सी. आप कंटिन्यू उसको 2 मिनट तक हीट सप्लाई करते रहो. Again you measure the temperature, you will find its temperature is again 0 डिग्री सी. तो जो हमने 2 मिनट का हीट एनर्जी आइस को दिया वो कहाँ गया? वो हीट एनर्जी आइस ने एब्जॉर्ब कर लिया विदाउट शोइंग. वो टेम्परेचर शो नहीं होता है. इट मीन्स इट इज हिडन. सो इट इज नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट. The temperature at which a liquid start boiling at the atmospheric pressure is known as boiling point. एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, उस पॉइंट को बॉइलिंग पॉइंट करेंगे. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी और 273 केल्विन होता है. ओके, के मीन्स केल्विन. इट इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर. Our next point is latent heat of vaporization. It is the heat energy required to change 1 kg liquid to gas at atmospheric pressure at its boiling point. It means we know boiling point of water is 100 degree C. 100 degree C पर water boil हो जाता है. उसके बाद भी अगर आप 2 मिनट तक कंटिन्यू उसको हीट सप्लाई करते रहो. आफ्टर 2 और 5 मिनट यू मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर. यू फाइंड इट इज 100 डिग्री सी. तो जो हमने 2 मिनट और 5 मिनट के लिए हीट एनर्जी सप्लाई किया वो एनर्जी कहाँ गया? दैट इज ऑल्सो हीटेड. सो इट इज नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट, sublimation. When solid directly converted into gaseous state without going through liquid state. अगर solid लिक्विड में ना जाकर डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन. फॉर एन एग्जाम्पल, कम्फूर यानी कपूर जो हम आरती के लिए यूज करते हैं. अगर आप कपूर को ओपन एटमॉस्फेयर में रखोगे तो वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में डिसअपियर हो जाएगा. इट मीन्स कपूर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, वो डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है. सो इट इज नॉन एज सब्लिमेशन. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डिपोजिशन. A change of state directly gas to solid without changing into liquid is known as deposition. अगर कोई गैस लिक्विड में ना कन्वर्ट होकर डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता हो. ओके, प्रोसेस तो क्या है? गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड. बट अगर कभी सिचुएशन ऐसा हो जिसमें गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको डिपोजिशन कहते हैं. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस. जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम सिलेंडर में इनक्लोज करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करते हैं पर टेम्परेचर को लो डाउन रखते हैं. अंडर हाई प्रेशर CO2 डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू सॉलिड CO2, नॉट द लिक्विड CO2. CO2 डायरेक्टली गैसियस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इट इज नॉन एज डिपोजिशन. सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन एज ड्राई आइस. ठीक है, सॉलिड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? ड्राई आइस. जस्ट सी इन फिगर. Here process name is mentioned. When you supply the heat, solid convert into liquid. जैसे solid convert into liquid और इस process को बोलेंगे fusion. Liquid convert into gas. It is known as vaporization. Gas converted into solid. It is known as deposition. Okay? अब opposite देखो. When solid convert into gas, it is known as sublimation. Gas convert into liquid, it is known as condensation. And liquid convert return back to solid, it is known as solidification. Okay? यहाँ 6 प्रोसेस है और हर स्टेट के अलग अलग मीनिंग होते हैं. We also have some important
points in this chapter. First point, 1 atmosphere. 1 atmosphere means 1 atmospheric pressure, that is equal to 1.01 into 10 raised to 5 Pascal. Pascal is the SI unit of pressure. Second point, 0 degree C is equal to 273 Kelvin. Here C means Celsius and K means Kelvin. 0 डिग्री सी का मतलब 273 केल्विन होता है. सपोज एनी वन आस्क 15 डिग्री सी इज इक्वल टू हाउ मच केल्विन, कितना केल्विन होगा. देन वी नो दैट 0 डिग्री सी इज इक्वल टू 273 केल्विन. तो 15 डिग्री सी इक्वल टू 15 प्लस 273 इज इक्वल टू 283 केल्विन. Okay, now anyone ask 300 Kelvin is equal to how much degree Celsius? We know that 273 Kelvin equal to 0 degree C. So 300 Kelvin means 300 minus 273 is equal to 27 degree Celsius. Now we take the other example. Suppose anyone ask 250 degree C is equal to how much Kelvin? कितने Kelvin होते हैं? तो all we know 0 डिग्री सी इक्वल टू 273. तो 250 मीन्स 250 प्लस 273, उसमें 273 प्लस कर दो तो हाउ मच इट इज 523 केल्विन. कितना हुआ आपका 523 केल्विन. ओके, इफ एनीवन आस्क 573 केल्विन, ओके ऑलरेडी यू हैव 573 केल्विन. अब इसका मतलब बताओ कितना डिग्री सेल्सियस हुआ. तो वी नो दैट 273 केल्विन का मतलब 0 डिग्री सी. तो 573 में, तो 573 में से 273 माइनस कर दो तो कितना आपका रिमेनिंग बचा 300 केल्विन, सॉरी 300 डिग्री सेल्सियस. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज एवापोरेशन. एवापोरेशन मतलब the phenomena of change of a liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. It means अगर boiling point से पहले ही liquid vapor यानी गैस में change हो जाए तो उसे evaporation कहते हैं. Okay? The factor affecting the evaporation are, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिस पे एवोपरेशन प्रोसेस डिपेंड करता है. फर्स्ट पॉइंट, एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया. अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एवोपरेशन भी इंक्रीज होगा. फॉर एन एग्जांपल 100 मिलीलीटर वाटर को एक ग्लास में लो और 100 मिलीलीटर वाटर को बाउल में रखो. ओके, दोनों को सनलाइट में रख दो. यू फाइंड इट एवोपरेशन किस में फास्ट हुआ. तो आप देखोगे श्योरली बाउल में एवापोरेशन सबसे फास्ट होगा. व्हाई? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ग्लास के कंपेयर में ज़्यादा था. नाउ सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा एवापोरेशन प्रोसेस भी इंक्रीज होगा. जैसे विंटर और समर सीजन में देखोगे तो एवापोरेशन प्रोसेस का फास्ट होता है समर सीजन, क्योंकि हीट उसमें सबसे ज़्यादा होता है. नाउ थर्ड पॉइंट, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी. और फर्स्टली वी डिस्कस्ड ऑन ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. ओके, अगर एयर में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है तो एवापोरेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड. अगर विंड स्पीड हाई होगा तो एवापोरेशन प्रोसेस भी फास्ट होगा. ओके, नाउ बी रिमेंबर, जब भी एवापोरेशन प्रोसेस होगा तब हमें कूलिंग फील होगा. Okay, evaporation causes cooling. Now this statement explained by some examples. Why should we wear cotton cloth in summer? हम समर सीजन में कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं? आंसर, ड्यूरिंग समर वी perspire more because of mechanism of our body which keeps us cool. समर सीजन में बाकी सीजन के हिसाब से हमारे में से बॉडी में से स्वेट यानी पसीना बहुत ज़्यादा रिलीज होता है जो हमारे बॉडी को लिटिल बिट कूल रखता है. वी नो दैट ड्यूरिंग एवापोरेशन द पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग और द बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर. जब एवापोरेशन होता है तो आपका जो आसपास के पार्टिकल होते हैं वो सरफेस से या आपकी बॉडी से हीट लेकर एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है? वेपर में. द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. और जो ये हीट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट. इट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल.
और ये हीट हमारी बॉडी से लेता है। जब आपका एवोपरेशन प्रोसेस होता है तो उसके साथ हमारी बॉडी की हीट भी एवोपरेट हो जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी को कूलनेस फील होता है। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी एवोपरेशन। कॉटन क्लॉथ आपका गुड एब्जॉर्बर होता है, ओके। वो इजिली आपके स्वेट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा, जिसके कारण एवोपरेशन प्रोसेस फास्ट होता है और आपको कैसा फील होता है, कूल। सो वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर सीजन। नाउ नेक्स्ट, why do we see water droplet on the water surface of a glass containing ice cold water? जब आप किसी ग्लास में आइस कोल्ड वाटर रखते हो तो आसपास, ग्लास के आसपास, बाहर से, आउटसाइड से कुछ वाटर ड्रॉपलेट दिखते हैं। वो वाटर ड्रॉपलेट कहाँ से आया? Let us take some ice cold water in a tumbler. Tumbler means glass. आप tumbler में कुछ ice cold water रखो. Soon we will see water droplet on the outer surface of the tumbler. The water vapor present in air on coming in contact with cold glass of water loses energy and gets converted to a liquid state, which we see as a water ड्रॉपलेट। सपोज कर लो ग्लास में हमने आइस कोल्ड वाटर लिया। वी नो दैट वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ठीक है, हमको पता है कि ऑलरेडी एयर में वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे ही वाटर वेपर ग्लास के कांटेक्ट में आता है तो वाटर वेपर का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जो हमें वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में दिखते हैं। क्लियर? I think all of you understood. Here, first chapter is over.